प्रसन्नवदनं जाये सर्वविघ्नोपशान्तये यशस्तिरतवक्तार्याः पारिज्याव्रजतं विघ्नं निघ्नदातं विश्वक्षेणं तमाश्रये। ओम श्री गोविंद गोविंद महाविश्वासे प्रवर्तमानः आद्य ब्राह्मणः सैतवराकलय वैवस्वनन्त्रे कलिगे प्रथमपादे जुम्बोदीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्यो मध्यदेशे समस्त देवता ब्राह्मण आर्यसनिधौ अस्मिन्नोत्तमाने व्यवहारिक प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघमासे शुक्लपक्षे नवम्यां कृतिका नक्षत्रे युक्तायां राजा राष्ट्र अभिवर्धेद्धं लोकक्षेमाभिवर्धेद्धं अस्य यजमानस्य मी पेरु गोत्रम अनुकोंडि सर गोत्रस्य नामधेयस्य पत्नी समेतस्य पुत्रस्य सपुत्रकस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय हभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवर्धेद्धं सकलकार्य अनुकूल सिद्धेद्धं श्री पद्मावती समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सव आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये। गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद। वसनां सर्वभूषोज्वांगिलां बीजापुरां कनकलसं हेमपद्मं तदानाम् आद्यां शक्तिं सकल जननीं सर्वमांगल्ययुक्ताம் என்று திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரை லக்ஷ்மி ஹிருதயத்திலிருந்து சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. பக்தர்களே, தை மாதம் வியாழக்கிழமை கிருத்திகை நட்சத்திரம் நவமியுடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவிக்கலாம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருமலையிலே வேங்கடவன் இங்கே ஸ்ரீனிவாசனாக எழுந்தருளி பத்மாவதி தாயாரை திருக்கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்காக திருச்சானூரிலே எழுந்தருளியிருக்கிறார். அந்த பகவானையும் சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் திருச்சானூர் கோவில் உள்ளே இருக்கும் மண்டபத்திலிருந்து சேவிக்கலாம். மகாலட்சுமி என்றால் அஷ்டலட்சுமிகளாக திருச்சானூரிலே கஜலட்சுமியாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவள். அந்த திருச்சானூர் கஜலட்சுமியை சேவிக்கும் பொழுது அஷ்டலட்சுமிகளையும் சேவித்த பலன் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்டவள், அதாவது மகாலட்சுமி, இங்கே திருச்சானூரிலே பத்மாவதி தாயாராக எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும் அந்த தாயார் இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே வீற்றிருக்கிறாள். வீட்டிலே மகாலட்சுமி வாசம் செய்திட வேண்டுமானால் 8 வகையான மங்கள பொருள்களை கண்ணாடி பெட்டியில் வைத்து தினமும் சேவிக்க வேண்டும். அந்த பொருள்களையும் எப்படி எவை என்று பார்க்கும் பொழுது குங்குமச்சிமிழ், சந்தனம், தாம்பூலம், கொட்டைப்பாக்கு, சங்கு, கண்ணாடி, காமாட்சி விளக்கு, தாமரை இலை, தாமரை இவை வீட்டில் இருந்தால் பெண்களால் வழிபட்டாலும் அதனால் மகாலட்சுமி ஈர்க்கப்படுவாள் என்பது ஒரு அறப்பளீச சதகம் கூறுகிறதாம். பௌர்ணமி, வெள்ளிக்கிழமை, பூரம் நட்சத்திரம், அஷ்டமி திதிகளில் ஆகிய நாட்களில் அஷ்ட மங்களங்களை வைத்து பூஜை செய்து வந்தால் வீட்டிலே வறுமை நெருங்காதென்றும் தன்னுடைய வரவிற்கு குறை இருக்காது என்றும் கூறுகிறார்கள். ஆகவே பக்தர்களே,
இன்று லக்ஷ்மி வாரம், குருவாரம் என்று கூட கூறுவார்கள். ஆகவே அந்த தாயாரையும் பத்மாவதி, அதாவது திருச்சானூரில் ஸ்ரீனிவாசனையும் சேவித்துக்கொண்டு கல்யாண உற்சவத்திலே விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வஜனத்தை சேவிப்போம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த தாயாரையும், வெங்கடரமணா கோவிந்தா செங்கடஹரணா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீனிவாசனையும் செவிக்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹா என்று வேத மந்திரங்கள் மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஆரம்பமாகிறது திருச்சானூரிலே திருக்கல்யாண மகோத்சவம். தினந்தோறும் இந்த தாயாருக்கு காலை 10 மணியிலிருந்து 11 மணி வரை திருக்கல்யாண மகோத்சவம், நித்திய கல்யாண உற்சவம் நடைபெறுகிறது. திருமலையிலே எம்பெருமானுக்கு மதியம் 12 முதல் 1 மணி வரையிலும், இங்கே 10 மணி முதல் 11 மணி வரையிலும் தினந்தோறும் நித்திய கல்யாணம் நடைபெறுகிறது. पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनेमहे भाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदम् ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्यै बह्वे स्तनुवो वेदपृष्ठाः तया मदन्तस्तथमाद्येषु वयज्ञस्यामपतयोरयीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदम् ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येति ऋषिभिः संहृतगम् रसम् सर्वगम् सपूतमश्नाति स्वदितम् मातरिष्वना पावमानेर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतगम् रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगम् सर्पिर्मधोदकम् पावमाने स्वस्तयनेः सुदुघाहि पयस्वतेः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकम् हितम् पावमानेर्दिशन्तु नः इमम् लोकमथो अमुम् कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तयनेः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकम् हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानम् पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु माम् राजापत्यम् पवित्रम् शतोद्यामकम् हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतम् ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्वनेते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समेत्य यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवः सुवः तच्छंयो रावृणेमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जगातु भेषजम् षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वाप्यं स्वादुनाः देव्रान् देव्रेणामृतामृतेन मधुमते मधुमता सृजामे सज्ञा सोमेन सोमोऽस्यभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्व ग्रायसूत्रां न पच्यस्व
परितोषं दता सुतज्ञ सोमो यवत्तमग्न हवेः दधन्वायो नर्यो अप्स्वन्तरा सुषावसो मम द्रेभे वायो प्रोतः पवित्रेण प्रां सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखाः वायो प्रोतः पवित्रेण प्रत्यं सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखाः पुनाते ते परे श्रुतज्ञ सोमज्ञ सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतादनाः ब्रह्मक्षत्रं पावते तेज इन्द्रियज्ञ सुराया सोम सुत आसोतो मदाय शुक्रेण देवदेवताः पिबृद्धिरसेनान्नै यजमानाय धेहे कुविदङ्गयवमन्तो यवञ्चिद्यथादात्यान पूर्वं वियोयाम् इह हेषां कृणहे भोजनानि ये बर्हिष नम उक्तिर्न जग्मुः उपयामगृहेतोऽस्यश्वेभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वं रायत्वा सूत्राम्ने एष ते योनिस्तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा नानाशिवान् देवहेतज्ञ सदस्कृतं मासज्ञ सृक्षाधां परमे व्योमन् सुरात्वमसे सुष्मिने सोम एष मामा ऋग्से स्वां योनिमा विसन्ते उपयामगृहेतोऽस्याश्विन तेजः सारस्वतं वीर्य महेन्द्रं बलम् एष ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा महसे त्वा तेजोऽसि तेजोमये देहि वीर्यमसि वीर्यं मये देहि बलमसि बलं मये देह्योजस्योज मये देहि मन्युरसि मन्युं मये देहि सहोऽसि सहो मये देहि याघ्रं विशोचको भव मृकं च रक्षते श्येनं पातत्रिनग्नसिज्ञहग्नसेमं पात्वग्नहसः यदा पिपेष मातरं पुत्रः प्रमोदितोऽधयम् एतत्तदग्न अनृणो भावाम्यादौ पितरौ मया सम्प्रचस्थसम्मा भद्रेण पृङ्क्ता विप्रचस्थपिमा पापेन पृङ्क्ता देवायज्ञमादन्दत भेषजं भिषजाश्विनाः वाचा सरस्वते भिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि दधातः दीक्षायै रूपज्ञ षष्पाणि प्राय रूपमोपसदामेतत्तिस्रो रात्रे सुरासोताम् गोधूमाः शक्तो
दरमुपवाकारम्भस्य पयस्वरूप धोने सोमस्य रूपं वाजेनज्ञ सौम्यस्य रूपमामिक्षा यज्ञोत्रिया अनरूपः रूपं प्रागाधाय यजामः अर्धर्चैरुग्धानाज्ञरूपं पदैराप्नोति निविदा अस्त्रानाज्ञ वायव्यान्याप्नोति शतेन द्रोणकलशम् कुम्भे भृणसुते स्थालेराप्नोति यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहे स्तोमाश्च मृष्टोतेः छन्दोभिरुक्ता शस्त्राणि साम्ना बभृथ आप्यते इलाभिर्भक्षानाप्नोति सोक्ता केनाशिषा पत्नी यजान् साक्षाम् व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया समाप्यते तावद्रूपं यज्ञस्य यद्देवैर्ब्रह्मणा कृतम् तदेतत्सर्वमाप्नोति यज्ञ स्तोत्रमणे सुते सुरावन्दम्बर्षदज्ञ सुरेरै यज्ञज्ञ हिन्वन्दे महेशा नमोभिः दधाना स्वामं दिवि देवता सोमदेवेन्द्रै यजमाना स्वर्गाः यस्तेरसः सम्भृत ओषधेषु सोमस्य सूक्ष्म सुरया सुतस्य तेन जन्म यजमानं मदेन सरस्वती मश्विना इन्द्रमग्निम् यमश्विना नमो चैरासुरादधि सरस्वत्यसो नो इन्द्रियाय इमन्दज्ञ शुक्रं मधु मन्दमिन्दुज्ञ सोमज्ञ राजानमिह भक्षयामि यदत्रारिप्तज्ञरसिन सुतस्य यदिन्द्रो अपि बच्छचेभिः अहं ददस्य मनसा शिवेन सोमज्ञ राजानमिह भक्षयामि तत्रारिप्तज्ञरसिन सुतस्य यदिन्द्रो अपि बच्छचेमिः अहं तदस्य मनसा शिवेन सोमज्ञ राजानमिह भक्षयामि पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपेतामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मे मदन्त पितरो ते द्रपन्त पितराः पितरशुं दध्वम्
पुनन्तो मा पितरः सौम्यासः पुनन्तो मा पितामहाः पुनन्तो प्रपेतामहाः पवित्रेण शतायुषा पुनन्तो मा पितामहाः पुनन्तो प्रपेतामहाः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यश्नवै अग्न आयोऽग्निशिपवस आसुवर्जमिषञ्जनः आरेभादस्मदुच्छुणाम् पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तो मनसा धियाः पुनन्तो विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदेद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गरणम् यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विदधमन्तरम् ब्रह्मतेन पुनाहि माम् पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यश्नमै अग्न आयोऽग्निशिपवस आसुवर्जमिषञ्जनः आरेभादस्मदुच्छुणाम् पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तो मनसा धियाः पुनन्तो विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदेद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गरणम् यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विदधमन्तरम् ब्रह्मतेन पुनेमहे भाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेहि विश्वतः वैश्वदेवे पुनते देव्यागाद्यस्यामिमा भक्ष्यस्तन्वो वीतपृष्ठाः तयामदं दस्तदमादेश वयज्ञस्यामपतयोरयीनाम् ये समानाः समानसः पितरो यमराज्ये तेषां लोकस्वधानमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् येषामानाः समानसो जीवा जीवेषु मामकाः तेषाज्ञश्रेर्मयि कल्पतामस्मिन् लोके शतज्ञसमाः श्रुते अशृणवं पितॄणामहं देवानामुतमर्त्यानाम् ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदं तरा पितरं मातरं च यदग्हव्यः प्रजननं अस्तु दशवेरज्ञ सर्वगणज्ञ स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुशने लोकशन्य भयशने अग्नः प्रजां बहुलां मे करत्वन्नम्बयोरेतो अस्मासु धत्त उदीरतमवर उत्परा सवन्मध्यमा पितरः सौम्यासाः असंय इयोरावृकारदज्ञास्तेनो वन्दो पितरो हवेषु त्वग्सोमप्रचिकितो मनीषा त्वग्रज्येष्ठमनो निषिपन्था तव प्रणेते पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः त्वया हि न पितरः स्वमपूर्वे कर्माणि चक्रः पावमान धीराः वन्वन्नवाग्नपरिदेर्गरपोर्णभिरेभिरश्वैर्मघवा भवानः
त्वज्ञसोमपितृभिः संविधानो नोद्या वा पृथिवी आदादन्धाम् तस्मै द इन्दो हविषा विधेमवयज्ञस्यामपतयोरयीनाम् बर्हिषदपितर ओत्यर्वागिमा वो हव्याचकृमाजुषध्वम् त आगता मे नाधानश्चयोररपोदधाता उपाहोता पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषप्रियेषु त आगमन्तु धैष श्रोवन्तु धिब्रुवन्तु देवन्त्वस्मान् आहं पितॄन् स्वविदत्रां अवेत्सि न पादं च विक्रमानं च विष्णोः बर्हिषधये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठा पितरयेह सुप्रणेतयः अत्ता हवेज्ञप्रयतानि बर्हिष्यथा प्रयज्ञ सर्वा वेरन्दधातमा आयं तुमः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ता पथिब देवयानेः अस्मिन् यज्ञे स्वदयामदन्तो दिब्रुवन्तु देवन्त्वस्मान् ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिव स्वधया मादयन्ते तेभ्यः स्वरालसो नीतिमेतां यथा वशं तं कल्पयाति अग्निष्वात्तान् ऋतुमतो हवामहे नारासज्ञसेन स्तोमेन पितॄणां च मन्मभिः திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை இப்பொழுது நாம் சேவிக்க உள்ளோம். அதாவது இந்த சங்கல்பம் கன்னியாதானம் என்பது கல்யாண உற்சவத்திலே மிகவும் சிறப்பான ஒரு கைங்கரியம். ஒரு பெண்ணாக பிறந்தவள் புகுந்த வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டிய வயது வந்துவிட்டால் அவளுக்கு திருமணம் செய்து சாலங்குறுத்த கன்னியாதானம் செய்து அந்த மாப்பிள்ளையனுடைய கரத்திலே தன்னுடைய பெண்ணை பிடித்து கொடுத்து 7 தலைமுறைகளுக்கான பிரவரைகளை கூறி அதன் பின் சாலங்குறுத்த கன்னியாதானம் செய்வார்கள். அதனால்தான் ஆண்டாள் கூட அவதாரம் நிகழ்ந்தது என்று கூறுகிறார்கள். எப்படி என்றால் சிறு வயதிலேயே அந்த கண்ணபிரானை நினைத்து அவனுக்கு சேவை செய்து புஷ்பமாலைகள் கட்டி தொடுத்து அந்த பகவானுக்கு சேவை செய்தவள். அதனால்தான் அவனையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று காத்தியாயினி விரதத்தையும் நோன்பினையும் நோற்று இறுதியில் அந்த பகவானையே திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறாள். அப்பொழுது சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் செய்யப்படுகிறது. இந்த சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் மகா சங்கல்பம் செய்யும் கைங்கரியங்களை செய்தால் 21 தலைமுறைகள் செழிக்கும் என்றும் அதனால் பெண் பிள்ளை தன்னுடைய பித்திருக்களுக்கு மோட்சத்தை அளிப்பாள் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆகவே பக்தர்களே, கல்யாண உற்சவத்திலே கல்யாணங்கள் நடக்கும் பொழுது நடைபெறும் பொழுது அந்த சாலங்குர்த்த கன்னியாதானம் மகா சங்கல்பம் நிச்சயமாக நடத்தப்பட வேண்டும். அதனால் பெண் பிள்ளையால் அவர்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறது என்றால் மிகவும் மகிழ்ச்சியான விஷயம்தானே. ஆகவே பக்தர்களே, இதோ இந்த சாலங்கிருத்த கன்னியாதானத்தை பார்த்தாலும் அந்த பிரவரைகளை கேட்டாலும் நமக்கும் முக்தி கிடைக்கும், நமக்கும் மோட்சம் கிடைக்கும். ஆகவே திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அந்த தாயாருடைய திருக்கரத்தை பகவானுடைய திருக்கரத்தின் மீது வைத்து சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களே மந்திர வடிவில் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. செவிக்கலாம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகி ஸ்ரீரங்க நாயகி என்றும், ராம அவதாரத்திலே சீதா பிராட்டி என்றும், கிருஷ்ண அவதாரத்திலே ருக்மிணி சத்யபாமை என்றும் இவ்விதமாக நாம் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம்.
ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹ என்று அந்த தாயாரை சேவிக்கலாம். திருச்சானூர் என்றாலே நமக்கு நினைவிற்கு வருவது அந்த பத்மாவதி தாயாருடைய கோவில், அதாவது ஆலயம். அந்த தாயாரை சேவித்து விட்டுத்தான் மலைக்கே செல்ல வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆகவே அந்த தாயாரை சேவிக்கலாம். அந்த தாயாரை கரம் பிடிக்கும் பகவானையும் சேவிப்போம். ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதியே நமஹ என்று இந்த தாயாரை சேவித்து கொண்டு இதோ சாலங்கிருத்த கன்யாதானத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிப்போம் மகாலட்சுமி தேவியை. அதிஷ்டமானே இதி கிருஷ்ணः ரூபம் கிருத்வா अपक्रम्येत्यपक्रम्य अतिष्ठत अन्ते अमन्यन्त यं वै इमे इति आवर्त्यतः सः इदं भविष्यति इति ते इति उपेति अमन्त्रयन्त ते इति अहोरात्रयो महिमानम् अपधाय देवान् उपावर्तेतामित्युपा स्त्रियाः यत् कृष्णं यत् एव एनयोः तत्रान्यक्तमिति निअक्तं तत् नाजिनेने एतत् यत् कृष्णाजिनमिति देव इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् गर्भः वै एषः यत् दीक्षितः उल्बं वासः प्रेति ऊर्नुते एतस्मात् गर्भाः प्रावृताः जायन्ते एना पुरा सोमस्य क्रयात् अपेति ऊर्न्वीत यत् पुरा सोमस्य क्रयात् अपोर्न्वीतेत्यप ऊर्न्वीत गर्भाः प्रजानामिति प्राजानां परापातुका इति परापातुकाः स्युः क्रीडे सोमे अपेति ऊर्नुते जायते एव तत् अथो इति यथा वसीयागंसम् प्रत्यपोर्नुत इति प्रति अपोर्नुते तादृक् एव तत् अंगिरसः सुवर्गमिति सुवहागं लोकं यन्तः ऊर्जं वीति अभजन्त ततः यत् अत्यशिष्यतेत्यति अशिष्यत ते शरार्क वै शराः यत् शरमयीति शरमयी ऊर्क वै शरा यत् शरमयीति शरमयी मेखला भवति ऊर्जम् एव अवेति रुन्धे मध्यतः समिति नह्यति मध्यतः एव अस्मै ऊर्जं दधाति तस्मात् मध्यतः ऊर्जा भुञ्जते ऊर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभ्यै मेध्यम् अवाचीनम् अमेध्यं यत् मध्यतः सन्नह्यतीति सम्नह्यति मेध्यं च एव अस्य अमेध्यं च व्यावर्तयतीति वि आवर्तयति इन्द्रः वृत्रम् इन्द्रः वृत्राय वज्रं प्रेति अहरत् सः त्रेधा वीति अभवत् स्फ्यः तृतीयं रथः तृतीयं यूपः तृतीयं ये अन्तःशरा इत्यन्तः शराः अशीर्यन्त ते शराः अभवन् तत् शराणां शरत्वमिति शरात्वं वज्रः वै शराः क्षुत् खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृव्यः यत् शरमयीति शरमयी मेखला भवति वज्रेण एव साक्षादिति सा अक्षात् क्षुधं भ्रातृव्यं मध्यतः अपेति हते त्रिवृदिति त्रिवृत् भवति त्रिवृदिति त्रिवृत् वै प्राण इति प्राणः त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव प्राणमिति प्राणं मध्यतः यजमाने दधाति पृथ्वी भवति
रज्जूनां व्यावृत्या इति आवृत्यै मेखलया यजमानं दीक्षयति योक्त्रेण पत्नीं मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय यज्ञः दक्षिणाम् अभीति अध्यायत तां समिति अभवत् तत् इन्द्रः अचायत सः अमन्यत यः वै इतः जनिष्यते सः इदं भविष्यति इति तां प्रेति अविशत् तस्य आह इन्द्रः एव अजायत सः अमन्यत यः वै वत् इतः अपरः जनिष्यते सः इदं भविष्यति इति तस्य आह अनुमृष्येत्यनुमृष्य योनिम् एति अच्छिनत् सा सूतवशेति सूतवशा अभवत् तत् सूतवशाय इति सूतवशायै जन्म तां हस्ते नीति अवेष्टयत तां मृगेषु नीति अदधात् सा कृष्णविषाणेति कृष्णविषाणा अभवत् इन्द्रस्य योनिः असीमा मा हिगंसीः इति कृष्णविषाणामिति कृष्णविषाणां प्रेति यच्छति स योनिमिति सा योनिम् एव यज्ञं करोति स योनिमिति सा योनिं दक्षिणां स योनिमिति सा योनिम् इन्द्रं स योनित्वायेति स योनित्वाय कृष्यैत्वा सुसस्याय इति सुसस्यायै इति आह तस्मात् अकृष्टपच्या इत्यकृष्टपच्याः ओषधयः पच्यन्ते सुपिप्पलाभ्य इति सुपिप्पलाभ्यः त्वा ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः इति आह तस्मात् ओषधयः फलं गृह्णन्ति यत् हस्तेन कण्डूयेत पामनं भावुका इति पामनं भावुकाः प्रजा इति प्राजाः स्युः यत् स्मयेत नग्नं भावुका इति नग्नं भावुकाः कृष्णविषाणयेति कृष्णविषाणया कण्डूयते अपि गृह्येत्यपि गृह्य स्मयते प्रजानामिति प्राजानां गोपीठाय न पुरा दक्षिणाभ्यः नेतो कृष्णविषाणामिति कृष्णविषाणाम् अवेति चिर्तेत् यत् पुरा दक्षिणाभ्यः नेतो कृष्णविषाणामिति कृष्णविषाणाम् अवचिर्तेतित्यवचिर्तेत् योनिः प्रजानामिति प्राजानां परापातुकेति परापातुका स्यात् नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाणामिति कृष्णविषाणां प्रेति अस्यति योनिः वै यज्ञस्य चात्वालं योनिः कृष्णविषाणेति कृष्णविषाणा योनौ एव योनिं दधाति यज्ञस्य स योनित्वायेति स योनित्वाय वाक् वै देवेभ्यः यज्ञाय अतिष्ठमाना सा वनस्पतीन् प्रेति अविशत् सा एषा वाक् वनस्पतिषु वदति या दुन्दुभौ या तूणवे या वीणायां यत् दीक्षितदण्डमिति दीक्षितदण्डं प्रयच्छतीति प्रयच्छति वाचम् एव अवेति रुन्धे औदुम्बरः भवति ऊर्क् वै उदुम्बरः ऊर्जम् एव अवेति रुन्धे मुखेन सम्मित इति सम्मितः भवति मुखतः एव अस्मै ऊर्जं दधाति तस्मात् मुखतः ऊर्जा भुञ्जते क्रीते सोमे मैत्रा वरुणायेति मैत्रा वरुणाय दण्डं प्रेति यच्छति मैत्रा वरुण इति मैत्रा वरुणः हि पुरस्तात् ऋत्विग्भ्य इत्यर्त्विक्भ्यः वाचं विभजतीति विभजति तां ऋत्विजः यजमाने प्रतीति स्थापयन्ति स्वाहा यज्ञं मनसा इति आह मनसा हि पुरुषः यज्ञम् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति
स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्याम् इति आह द्यावा पृथिव्योरिति द्यावा पृथिव्योः हि यज्ञः स्वाहा पुरोः अन्तरिक्षात् इति आह अन्तरिक्षे हि यज्ञः स्वाहा यज्ञं पातात् एति रभे इति आह अयम्. ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே நம. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை முடித்துக்கொண்டு இதோ மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. மாங்கல்யங்கள் என்பது அந்த மகாலட்சுமி தாயார் பத்மாவதி தாயாருடைய மாங்கல்யங்களை சுத்தமான ஜலத்தில் அலம்பி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமமிட்டு இதோ அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். சம்பத்துக்கள் வேண்டுமென்றால் லக்ஷ்மி தேவியை தினந்தோறும் நாம் பூஜிக்க வேண்டும். அல்லது செவ்வாய்க்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை அல்லது பௌர்ணமி இந்த நாட்களிலே அந்த தாயாரை நாம் மகாலட்சுமி அஷ்டகத்தாலும் சகசிரநாமத்தாலும் பூஜை செய்து சேவித்தோமானால் அந்த தாயார் நமக்கு அருளி செய்வாள். அதேபோல் விளக்கிலே மகாலட்சுமியை ஆவாகனம் செய்து அஷ்டலக்ஷ்மிகளுக்கும் பூஜை செய்தால் அந்த அற்புதமான பலன் தருவாள் அந்த தாயார். அப்படிப்பட்ட தாயாருடைய மாங்கல்யங்களுக்குத்தான் இதோ இப்பொழுது பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த நாச்சியார் திருமொழியிலே தாயார் திருப்பாவையையும் எழுதி, அதாவது ஆண்டாள் திருப்பாவைகளை எழுதி காத்தியாயனி விரதத்தை செய்து அந்த பகவானை சரணடைந்து சரணாகதி செய்து அவனையே திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறாள். அந்த நாச்சியார் திருமொழியிலே பாசி தூர்த்து கிடந்த பார் மகட்கு பண்டொரு நாள் மா கடம்பில் நீர்வார மானமிலா பன்றியாம் தேசுடைய தேவர் திருவரங்க செல்வனார் பேசி இருப்பனகள் பேர்க்கவும் பேராவே என்று நாச்சியார் திருமொழியிலே ஆண்டாள் கூறுகிறாள். வைகுண்டத்திற்கே சென்று அவனை தரிசிக்கும் எல்லா வல்லமை பெற்றவர்கள் முனிவர்கள். அவர்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்கவும் ஆசி வழங்கவும் பரந்தாமன் எப்பொழுதும் காத்திருப்பான். அப்படி ஒருமுறை அந்த சனகாதி முனிவர்கள் நால்வரும் வைகுண்டம் சென்ற பொழுது பெருமாள் ஏகாந்த சேவையிலே இருந்ததினால் துவார பாலகர்களான ஜெய விஜயர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதி மறுத்தனராம். இதனால் கோபம் கொண்ட சனகாதி முனிவர்கள் ஜெய விஜயர்களை பூலோகத்தில் பிறப்பீர்களாக என்று சபித்தனராம். தன் பக்தர்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை என்று அறிந்த நாராயணர் வைகுண்டத்தின் வாசலுக்கே எழுந்தருளினாராம். அதை கவனித்த சாபம் கொடுத்து விட்டதை எண்ணி வருந்திய சனகாதி முனிவர்களை தேற்றினார். ஜெய விஜயர்கள் தாங்கள் செய்த தவற்றினை உணர்ந்து முனிவர்களையும் பகவானையும் பணிந்து சாப விமோசனம் வேண்டினார்களாம். அப்படி அந்த மகாவிஷ்ணு அவர்களுக்கு சாப விமோசனத்தை அழித்து அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார். அதற்கு ஏதுவானவள் மகாலட்சுமி தாயார். ஏனென்றால் தன்னுடைய பக்தர்கள் தவறு செய்தால் அதை பகவானிடம் நமக்காக பரிந்து பேசுபவள் அந்த தாயார். அப்படிப்பட்ட மகாலட்சுமி தாயார் இதோ இங்கே சங்கல்பமானம் பிரகல்பமானமுபகல்பமானமுபக்ளுப்தம் க்ளுப்தம் ஸ்ரேயோவசீய ஆயத் சம்பூதம் பூதம் சித்ரः கேதுः பிரபாநாபான் சம்பான் ज्योतिष्मागस्तेजस्वानातपग्गस्तपन्नभि तपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः.
శోభనాలు నీకు నతనికి తగును. నెల 3 శోభనాలు నీకు నతనికి తగును. కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. నెల 3 శోభనాలు నీకు నతనికి తగును. కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ. రామనామవతనిది రామవు నీవైతేను. చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు. రామనామవతనిది రామవు నీవైతేను. చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు. వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు. వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు. ప్రేమ భూమికిద్దరికి పేరు బలమొకటే. కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ.
वै रक्षोहेति रक्षः अग्ने त्वं स्विति जागृहि वयं स्विति मन्दिषीमहि इति आह अग्निम् एव अधिपामित्यधिपां कृत्वा स्वपिति रक्षसाम् अपहत्य इत्यपहत्यै अव्रत्यम् इव वै एषः करोति यः दीक्षितः स्वपिति त्वम् अग्ने व्रतपा इति व्रतपाः असि इति आह अग्निः वै देवानां व्रतपतिरिति व्रतपतिः सः एव एनं व्रतम् एति लम्भयति देवः एति मर्त्येषु एति इति आह देवः हि एषः सन् मर्त्येषु त्वं यज्ञेषु ईड्यः इति आह एतं हि यज्ञेषु ईडते अपेति वै दीक्षितात् सुषुपुषः इन्द्रियं देवताः क्रामन्ति विश्वे देवाः अभीति माम् एति अववृत्रन् इति आह इन्द्रियेण एव एनं देवताभिः समिति नयति यत् एतत् यजुः न ब्रूयात् यावतः एव पशून् अभीति दीक्षेत तावन्तः अस्य पशवः स्युः रास्व इयत् सोम एति भूयः भर इति आह अपरिमितानित्यपरिमितान् एव पशून् अवेति रुन्धे चन्द्रम् असि मम भोगाय भव इति आह यथा देवतमिति यथा देवतम् एव एनाः प्रतीति गृह्णाति वायवे त्वा वरुणाय त्वा इति यत् एवम् एताः न अनुदिशेदित्यनुदिशेत् अयथा देवतमित्ययथा देवतम् दक्षिणाः गमयेत् एति देवताभ्यः पृष्येत यत् एवम् एताः अनुदिशतीत्यनुदिशति यथा देवतमिति यथा देवतम् एव दक्षिणाः गमयति न देवताभ्यः एति वृष्यते देवीः आपः अपां नपात् इति आह यत् वः मेध्यं यज्ञियं स देवमिति सा देवं तत् वः पात् अवेति क्रमिशम् इति वाव एतत् आह ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा కుటుకల దానికి
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ